I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादयान जी आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। और जो ये प्यार, जो समर्थन आपने दिया, हम इसके आभारी हैं। और आप सभी का, सम्मानितों का, मातृशक्ति का, पितातुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और आज इंद्रदेव भी खुश हैं, वो भी अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी आपकी बात ये कर लिया है फैसला और आशीर्वाद दे दिया है अपने बेटे को। और ये जनता के प्यार ने भी दिखा दिया कि अब की बारिश गन्नौर में कोई नेता नहीं बल्कि बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। यही तालियों की गूंज, यही जो जनसैलाब, जो भीड़ अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आती है, यही भीड़, यही आशीर्वाद, यही आपका प्यार, यही आपका समर्थन इस समाज सेवी को ऊर्जा देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। और ये आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादयान जी, यही दी गई आपकी ऊर्जा और ताकत आपके विकास पर लगाते हैं, आप सबकी सेवा में लगाते हैं। ऐसी विचारधारा इनकी है, ऐसी कार्यशैली इनकी है। जिस इंसान ने बगैर राजनीतिक पद के 8.5 सालों तक इस जनता की सेवा की हो, आप सोच सकते हो कि सोच कैसी है। अगर आपने आशीर्वाद दिया, अगर आपने प्यार दिया और अब की बार आपके बेटे, आपके भाई विधानसभा में जाते हैं, तो आने वाले समय में इस गन्नौर की तस्वीर कुछ और होगी। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और नाम होगा इस गन्नौर का पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जाना जाएगा ये गन्नौर, क्योंकि इनके अंदर एक जिद, एक जुनून है काम करने का। इनके अंदर, इनके सेवा भाव, इनके मन के विचार, सिर्फ इनके मन के विचार के अंदर एक ही बात है कि मेरे को 36 बिरादरी की सेवा करनी है, मेरे को अपने गन्नौर की सेवा करनी है। ऐसे विचारों के साथ 8.5 सालों तक आपकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अब समय है आप सभी मिलकर अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दें और इनको बता दें कि अब की बार देवेंद्र कादयान अकेला नहीं है, ये गन्नौर की पूरी जनता उनके साथ है। सभी ने ठान लिया कि अब की बार इस गन्नौर में एक बेटा चुना जाएगा, एक बेटा चुना जाएगा और गन्नौर के अंदर जो भेदभाव की राजनीति वो खत्म होगी और अब की बार जीत सच्चाई की होगी। एक बार और जोरदार तालियां। यही तालियों की गूंज इनका ऊर्जा देती है, यही आपका प्यार, यही आपका आशीर्वाद इनका ताकत देने का काम करता है। हाँ जी सर, एक बार हमारे बीच में कुछ सम्मानित आ जाओ जी प्लीज। श्री रामधारी खोकर जी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग ओम प्रकाश कादयान जी भाई मौजूद हैं। वो पगड़ी के साथ अपने बेटे का सम्मान करेंगे। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं श्री रामधारी खोकर जी और ओम प्रकाश कादयान जी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान करें और इनका हौसला बढ़ाएं। मंच पे आ जाएं एक बार श्री रामधारी खोकर जी, ओम प्रकाश कादयान जी, हाँ जी एक बार मंच पे आए। और हमारे बीच में सुभाष रोहिला जी, वो भी 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादयान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इनका भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और बाकी जितने भी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृशक्ति, युवा साथी हमारे बीच में हैं, आप सब ने भी अपने बेटे, अपने भाई को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, ये काबिले तारीफ है। और इस आशीर्वाद और आपके प्यार की जो कीमत है, ये आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा करके निभाएगा, आपका साथ देके निभाएगा। हमारे बीच में एक सम्मानित पंडित बलवान जी, हमारे अंकल जी मौजूद हैं। वो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और सुभाष रोहिला जी 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादयान जी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ये पगड़ी हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। इन्होंने ये सरदारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रख दी और ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं।
ये मान सम्मान, ये आपका आशीर्वाद, ये लोगों का प्यार, ये उमड़ा जन सैलाब सिद्ध करता है कि अब की बार गन्नौर में जीत सच्चाई की होगी, भेदभाव की नीति खत्म होगी और अब की बार इस गन्नौर में बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। ये आप सब ने सिद्ध कर दिया। अभी मौसम कुछ खराब है तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठाकर आपको नारे लगाने हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और देवेंद्र कादयान जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। भारत माता की, थोड़ा सा और जोश दिखाइए। भारत माता की। एक बार यही जोश अपने बेटे अपने भाई को भी दिखा दीजिए। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो, आपको दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है हम आपके साथ हैं, क्योंकि यही गूंज, यही प्यार आपके बेटे आपके भाई को ताकत देगा, इनको जोश मिलेगा, इनके रोम रोम को महसूस होना चाहिए कि ये गन्नौर की जनता इनके साथ है। सबने ठान लिया कि अब की बार गन्नौर के अंदर जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। सबने ठान लिया कि अब की बार गन्नौर के अंदर एक बेटा चुना जाएगा। दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ दिल से आवाज निकालनी है। देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो और जोश दिखाइए, महसूस करा दो अपने बेटे अपने भाई को, ये गन्नौर की 36 बिरादरी इनके साथ है। देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली अपने लिए कर दीजिए जो अपने इतना प्यार मान सम्मान आपने अपने बेटे अपने भाई को दिया, काबिले तारीफ है। भाई हेलो भाई आ जाए यार नीचे यार, ये लाइव चल रहा है यार, ये तो कैमरा है मेरे भाई। यही जोश युवाओं का जोश भी बताता है। अभी हमारे बीच में एक सम्मानित है सुलेख मास्टर जी, सुलेख प्रिंसिपल जी, सुलेख पांचाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके अपने मन के भाव हैं, कुछ विचार हैं, वो एक बार मंच पे आए और अपने विचार हम सब के बीच में रखें। मैं सर से निवेदन करूंगा कि मौसम थोड़ा खराब है, अपनी बातों को थोड़ा सीमित समय में पूरा करें। बहुत ही सम्मान के योग्य उपस्थित स्टेज पर मेरे बीच में आइयो जी, बीच में आओ प्लीज। भाइयों बहनों और मेरे साथी सभी, आओ जी आ जाओ नीचे। ये जन सैलाब मुझे लगता है कि आने वाला इस कन्नौर का भविष्य है, बहुत है भाई, आने वाला इस कन्नौर का भविष्य है और ये तय करने वाला है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में देवेंद्र कादयान जी यहाँ से विजयी होंगे और जिस तरीके से 8 साल तक ये सेवा करते रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी इस हल्के की कन्नौर की जनता की सेवा करते रहेंगे। चाहे सेवा की बात भाई साहब ने बहुत सारी बता दी, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक ये जो जड़ से विकास की नींव रखने का मन बनाया है वो है शिक्षा। देवा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से इन्होंने एक संस्था खोल रखी है जिसमें बहुत सारी लड़कियां लड़के मुफ्त एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और जिस हल्के में, जिस घर में, जिस देश में, जिस गांव में शिक्षा आ जाएगी वो कभी पिछड़ापन नहीं हो सकता, कोई पिछड़ नहीं सकता। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये जो शिक्षा का बीड़ा जो देवेंद्र कादयान जी ने उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य देवेंद्र कादयान जी ने किए हैं। ये भी बहुत सराहनीय कार्य है और मैं देवेंद्र कादयान जी से ये चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार से ही जनता की सेवा करते रहें और मैं चाहूंगा कि जन सैलाब जितना भी आपके सामने उपस्थित है वो सभी के सभी आपके साथ है। आने वाला भविष्य आप ही हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित रणधीर कादयान जी मौजूद हैं। वो एक मेमेंटो के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जो मान सम्मान, ये 36 बिरादरी है, गन्नौर की जनता जिस भी गांव में जाते हैं जो लोगों का प्यार मिलता है, जो लोगों की भीड़ आती है, जो उनका आशीर्वाद मिलता है, अब की बार ये निश्चित है कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर सिर्फ बेटा चुना जाएगा। अब की बार गन्नौर के अंदर जीत सच्चाई की होगी, भेदभाव खत्म होगा और अब की बार इस गन्नौर के अंदर जीत आपके बेटे की होगी। जोरदार तालियां।
ये मेमेंटो के साथ जो मान सम्मान दिया, इधर आ जाओ। अंकल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब हमारे बीच में एक सम्मानित राफल सैनी जी मौजूद हैं, उनके भी कुछ अपने मन के भाव हैं, वो मंच पे आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। राफल सैनी जी। एलईडी की ना शेड पड़ा पीछे, वो कट नहीं पड़ा ना इस वास्ते पूजा के योग्य और देवी तुल्य मेरी माताओं तथा बहनों और मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गों और हमारे हम उम्र साथी और मेरे युवा बच्चे और सबसे जो बड़ी बात है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले जनरेशन हम जिसको बोलते हैं, वो हमारे इस गन्नौर के चमन में खिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें हर हालत में इस युवा बेटे को बेटे से नेता बनाना ही पड़ेगा। ये हमारी जरूरत है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी, मतलब जो ना, एक बार भाई सारे खड़े हो गए, दिखा दो। काचन साहब ऐसा है मेरे साथियों, समय का अभाव है और भाई साहब हमारा बेटा भी है, लाडला भाई भी इससे विशेष ने हमारा रहा है और इसने भी हमें जो मान सम्मान दिया है। और मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना है, जो चाहूंगा इस समय भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप सभी जानते हैं कि मैंने भी सारी जिंदगी राजनीति में गुजारी, लेकिन हम अपने में से किसी को नेता नहीं बना पाए। और आज भगवान ने हमें मौका दिया है। गन्नौर वालों, अगर इस मौके को चूक गए तो आने वाला समय तुम्हें बख्शेगा नहीं। यार ये गाने और मैं ज्यादा समय न देते हुए आप सभी लोगों का तहे दिले धन्यवाद करते हुए एक बार फिर यही निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी, मेरी माँ बहन बच्चे, अपने आप को खुद को देवेंद्र का दान समझ के इलेक्शन लड़ना है। आप सभी लोगों ने, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय का भाव निकलने की जब मेरे अंदर बहुत बातें आपने सुन के रखी है मेरी। कि दोस्तों, जब मौका मिले ना, आज एक गरीब के घर से, एक किसान के घर से, एक मजदूर के घर से, जिस मेरे भाई ने मतलब जो है ना पटड़ी पे रेडी लगा के मतलब जो है ना अपना गुजारा करते करते उठते उठते तरक्की यहाँ तक की है। और आज परमात्मा ने मतलब जो है ना एक नेता के रूप में, कैंडिडेट के रूप में हमारे बीच में मतलब जो है ना भेजा है, तो हम मतलब जो है ना जी जान लड़ा के अपने आप को खुद को देवेंद्र का दान मानते हुए एक एक वोट पहली तारीख को कमल का बटन दबाकर देवेंद्र का दान। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे सम्मानित है रामपुर सैनी जी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमारे बीच में रखी, पूर्व के चेयरमैन रहे हैं। अभी मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। अभी 2 नारे आपको लगाने हैं, थोड़ी सी सुस्ती सब में होगी।
मैं अपनी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, बारिश का मौसम और ऊपर से मच्छर और फिर घर का काम, वो सारी चीजें एक साइड में, और अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने, उसके सिर पे हाथ रखने के लिए जो मातृशक्ति आई है, मैं उसको सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे समक्ष बहुत ही संख्या में गांधीनगर और आसपास के मेरे पितातुल बुजुर्गों और बहुत संख्या में मेरे नौजवान साथी, बच्चे, सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। इतना सम्मान दिया। और एक छोटे बुलावे पे आज इस समय हमारा जो कार्यक्रम था वो बड़ी गांव में था, वहां पर एक अचानक एक जवान डेथ हो गई, इसलिए हमने तुरंत प्रोग्राम वहां से चेंज किया। और मैं समझता हूं मुश्किल से 4-5 घंटे का ही टाइम दिया था, लेकिन फिर भी आप इतने छोटे नोटिस पे इतनी संख्या में अपने भाई, अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आए हैं। मैं सबका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। कुछ नाम सम्मानित व्यक्तियों के सम्मानित मंच पे मेरे हाथ में कागज है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे सम्मानित चेहरे, मैं समझता हूं वो पूरी 1-2 पन्नों पे नहीं, पूरी एक कॉपी भर जाएगी। ऐसे मेरे बहुत सारे सम्मानित चेहरे हैं जिनको नाम से, शकल से पिछले कई सालों से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूं। ऐसे सभी सम्मानित, क्योंकि इसमें कुछ नाम लिखे हैं, सभी सम्मानित हैं। हमारे 2 चेयरमैन पूर्व में रहे नगर पालिका के चेयरमैन ईश्वर कश्यप जी और दिनेश अदलखा जी, ये हमारे बड़े भाई। पिछले दिनों स्वास्थ्य काफी लंबे टाइम तक गड़बड़ में रहा, परमात्मा ने और हमारे भाई ने हिम्मत नहीं छोड़ी और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, दोबारा हमारे बीच में अपने छोटे भाई के साथ खड़े हो गए। और अभी जो आपके सामने जो टीम नजर आ रही थी, रामफल सैनी जी के जो साथ, चाहे दिनेश अदलखा जी की बात हो, चाहे हमारे अंकल भूप राठी की बात हो, वीरेंद्र सरपंच साहब की बात हो, देवेंद्र भाई की बात हो, ये सारी बबलू भाई जो टीम है, ये पुरानी टीम है। और ये टीम आज मंच पे आकर, जैसे रामफल सैनी जी ने कहा कि भाई ये मौका है एक बेटे को आगे बढ़ाने। श्री रामधारी खोखर जी, ओम प्रकाश कादियान जी, रामफल सैनी जी, हमारे युवा साथी वरुण जैन जी, शमशेर बड़े भाई, यहाँ से पार्षद नरेश वर्मा जी, पार्षद सुनील भाई पूर्व में चेयरमैन, सुनील का छोड़ के था, अकेले लेना चाहिए था 3 लोग। ये सुनील का तो बात करे दो कम साथ। हमारे बड़े भाई अशोक सैनी जी जो पूर्व में पार्षद, और रामचंद्र नंबरदार जी, ये भी पूर्व में पार्षद, किशन भाई, किशन किट्टी भाई, टिंकू प्रधान, ये भी हमारे पार्षद भाई, और गोरमेल सरपंच समसपुर गामड़ा, मोनू भाई सरपंच हीर माजरा, मास्टर जी विजेंद्र जी, हमारे गुरु जी सतपाल जी, पंडित बलवान जी, हमारे ताऊ जी बजाना कला से मास्टर धर्मपाल जी, राज तिलक पंचाल जी, जितेंद्र तूर जी, जन सेवा सोसाइटी गांधीनगर की टीम, रणधीर सिंह कादियान जी, फौजी साहब, राजेंद्र रोहिला जी, जस्साराम जी, बलगानंद जी, मास्टर मौजीराम जी, भूप सिंह राठी जी, प्रेमचंद राठी जी, वीरेंद्र जी पूर्व सरपंच राजलूगढ़ी, भारत मित्र जी, सुदर्शन गुमड़ जी,
राजेंद्र मलिक जी, इंद्र प्रजापति जी, प्रेम सिंह सरोहा जी, सतबीर खोखर जी, पार्क की कमेटी सुभाष रणदीप बजाड़ जी, ओम प्रकाश राठी जी और बाकी सारे जी जितने बचे बड़े थे। सबका दिल से धन्यवाद। मेरे को आपका मंच पे बुला के लूंगा। आप सब भाई को ताकत देने के लिए आए और ताकत किस बात की? आने वाले 1 तारीख को 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं और गन्नौर में चुनाव होना है। ये चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव गन्नौर में 2 चेहरों के बीच में नहीं है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में और नेता और बेटा के बीच में चुनाव है। मैंने कहा नेता और बेटा के बीच में चुनाव है। नेता वो जो राजनीतिक परिवार से आता है, 4-4 बार 5 बार जिनके पिताजी बड़े बड़े पद पर रहे। स्वयं आप लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया और ये 5 मिला लेते 15 साल से आपके बीच में हैं। उनकी कार्यशैली, काम करने का तरीका, यहां 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। हमारी सम्मानित बहनें, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं। वो जो कांग्रेस पार्टी का चेहरा जिसको 10 साल आपने मौका दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के लेवल की कुर्सी आप लोगों की बदौलत मिली। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब काम करने की बारी आई, जब आप लोगों की वोट देने की बारी थी, तो आपने उनके मुख से 36 बिरादरी के नारे सुने। मैं 36 बिरादरी के लिए ये करूंगा, 36 बिरादरी के लिए वो करूंगा, गांधीनगर के लिए ये काम करूंगा। और जब चुनाव जीत के आपके बीच में वो आए, क्या उन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया? क्या उन्होंने भेदभाव की राजनीति करी? हमारे 3 साथी बैठे हैं, तीनों मेरे से बड़े भाई हैं, तीनों पूर्व में चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के। कई पार्षद साथी भी बैठे और सब लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं। जिस तरीके से उन्होंने पक्षपात किया हमारे नगर पालिका में, चाहे चेयरमैन की बात हो, चाहे कार्यों की बात हो, जो खेल आज से कई साल पहले आपकी आंखों के सामने, ना कोई पार्टियों की सीमा रखी, कौन कांग्रेस में कौन बीजेपी में, लेकिन भेदभाव की राजनीति एक ऐसे व्यक्ति को जो उसका खास चाहता था उसके लिए सारी सीमाएं तोड़ी गई और सारे गन्नौर ने वो खेल देखा। उस नेता ने पिछले 15 साल में इस गन्नौर शहर में, गन्नौर शहर के अलावा हमारे गन्नौर विधानसभा में 78 गांव हैं। हर गांव में, किसी गांव में 1 अड्डा, किसी गांव में 2 अड्डे और कोई बड़ा गांव है और खास जितना बड़ा हो सकता है 3 अड्डे हों। मात्र 1, 2, 3 परिवारों का भला किया, उसके लिए, उसके अलावा
किसी का भला नहीं किया। गाड़ी के ब्रेक, उसकी गाड़ी के ब्रेक उन्हीं घरों में, नौकरी की बात उन्हीं घरों में। दूसरी बात, कोई बात गांव से रिलेटेड कोई पूछनी हो, कोई आदमी काम करने कराने आ जाए, फोन करना, भाई ये तेरे गांव का आदमी है भाई, अपना है कि नहीं, करे कि नहीं करे। भेदभाव की राजनीति गन्नौर शहर में, मंडी में 2-3 परिवार जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़े परिवार, उन्हीं के साथ व्यापारिक रिश्ते, उन्हीं के हिसाब से चलना, उन्हीं के घर में खाना, उन्हीं के घर में ठहरना और सारे गन्नौर का ठेका उनको देना, उनसे पूछना भाई बताओ क्या करना। कहने का मतलब भेदभाव की राजनीति, चाहे किसी गांव में जाके देखो, चाहे गन्नौर में देखो, किन किन परिवारों को रोजगार मिले, नौकरी कहां कहां पर बांटी गई। आप जाके उनके कार्यकाल में जिस पद पे वो बैठे थे, उस पद पे रहते हुए वहां पर जो नौकरियां बांटी गई, वहां भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का आपको देखिए। यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति ऐसे आए हैं जो बैकवर्ड समाज से, एससी समाज से आते। मेरे सामने बहुत सारी मूर्तियां। मैं पूछना चाहता हूं, आपने उस नेता को 2 बार मौका दिया 10 साल के लिए, और मैं ये बात आपसे हाथ ऊपर उठा के पूछना चाहता हूं कि भाई कोई गरीब परिवार, दलित परिवार या कोई बैकवर्ड समाज का आदमी मुझे बताए, यदि उस नेता ने आपके घर का पानी भी आज तक पिया हो, तो पानी नहीं पिया, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया क्योंकि उसने पानी नहीं पिया। यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो मेरे दादा ताऊ सारे बैठे हैं, मंच पे हैं, मंडी में, बीएसटी में, अपने कार्यालय पे अपनी उम्र से ज्यादा 10 साल बड़े, 20 साल बड़े हमारे बुजुर्गों से पैर दबवाए, हमारे सम्मानित बुजुर्गों से पैर दबवाए। यदि पैर ना दबवाए तो मुझे रोक दो, अब भाई छोड़, तू झूठ बोल रहा है, बता दो ना दबवाए हो तो। ये नेता की परिभाषा है, उसकी मानसिकता है, जो सोचता है कि क्यों मैं दलित के घर में उसके बर्तन में पानी पीऊं। वो अपने आप को यहां समझता है और सामने वाले को यहां समझता है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप मौका देना चाहते हैं, जिस आदमी को यह भी नहीं पता कि भाई ये तेरे से 25 साल 20 साल उम्र में बड़ा बुजुर्ग है, उससे तू पैर दबवा रहा है, उसको उस बारे में भी शर्म नहीं आई। हर जगह पर भेदभाव, ये कहानी केवल गांधीनगर की नहीं है। कदे ये सोचे भाई देवेंद्र आया था, चुनाव नजदीक था, कह गया यदि कोई बात झूठी हो, बिना तथ्य की हो तो मुझे रोक देना भाई, देख इतनी बात हुई थी, इतनी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा वो सारा सच का। दूसरी ओर मैंने कहा बेटा 8.5 साल पहले आपके बीच में आया था, मैंने 3 शब्द का नारा दिया, नेता नहीं बेटा। बेटा मैंने इसलिए कहा, एक नौजवान जिसने गरीब किसान के घर में जन्म लेके सरकारी स्कूल में शिक्षा लेके 12वीं क्लास गन्नौर का सरकारी स्कूल, 10वीं क्लास मोई माजरी, घर में पैसे नहीं थे, आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ी, शहर में आए, छोटे छोटे काम किए
कभी सब्जी बेची, कभी छोटी दुकान, कभी जूस की दुकान, ट्रक का ढाबा, दूसरा ढाबा। मेरे कहने का मतलब, मैंने बेटा उसको कहा जिसने गरीबी को खुद में महसूस किया हो, जिसने बेरोजगारी को हाथ में नौकरी का कागज लेके नेताओं के पीछे 2 साल 2.5 साल धक्के खाए हो, जिसने गरीबी की लड़ाई को खुद में से एक एक दिन महसूस किया हो, एक एक घंटा महसूस किया हो, मैंने उसको बेटा कहा। और नेता नहीं, बेटा इसलिए कहा कि मौका ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको गरीब की तकलीफ का पता हो, जिसको किसान की तकलीफ का पता हो, जिसको दुकानदार व्यापारी की तकलीफ का पता हो, जिसको हमारी माता बहनों की तकलीफ का पता हो, इन बेरोजगार युवाओं की तकलीफ का पता हो। क्योंकि नेता ने तो जन्म लेते ही ताम झाम, मुंह में सोने की चम्मच, क्योंकि उसके पिताजी बड़े बड़े पद पे, वो कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझ सकता। आपके भाई ने, आपके बेटे ने पिछले 8.5 साल में बिना चुनाव लड़े, बिना सरकार में किसी पद, हमने नरम लोगों में, गरीब लोगों में, पिछड़े लोगों में हर तरीके की मदद पहुंचाने का काम किया। चाहे गरीब घर की बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीब घर के बच्चे जो पढ़ाई में मेरिट में आते हैं उनको मुफ्त में पढ़ाने की बात हो, चाहे खेलों में बच्चों को अडॉप्ट करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में जगह जगह पर मेडिकल कैंप और आपके शहर को, आपके गन्नौर को 10-10 एम्बुलेंस देने की बात हो, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो संस्था के माध्यम से आपके भाई ने, आपके बेटे ने अपने भाव, अपनी भावनाएं, अपने विचार बताने की कोशिश की है। मैं कैसे विचार का इंसान, एक नेता है जो चुनाव के समय में आएगा, यहां भी आएगा, जिसकी सोच डेली शाम को चेक करता है कि भाई कितना चंदा आया, हिसाब लगाता है, चंदे का हिसाब लगाता है। आपने कभी उसके हाथ से 100 रुपए जाते देखे हैं गरीब के नाम पे? जाते मैंने देखे हैं, उसकी जेब से नहीं, जो उनसे उसके साथ चला गया उनकी जेब से जाते देखे। जब 2000 का नोट था, जब तो ऊपरली गौज में 2000 का दिखाया करता, भला देखिए रे 100 का ले रहा है कि मैं तो 2000 का ले रहा हूं। आजकल 500 का दिखाता है, क्योंकि 100 का रखना नहीं, 100 का दिवाना दूसरे पे। एक नेता है जो चंदे के लिए घूम रहा है, चंदा शाम को चेक करता है, और एक बेटा है जो रात को मोबाइल में देवा एम्बुलेंस ग्रुप में देखता है आज कितने घरों को, कितने लोगों की जान बचाई, कितने घरों तक एम्बुलेंस का फायदा। आपको एक बात गौर से समझनी, वो नेता आजकल चेहरा बदल के, अपना रूप रंग बदल के, चेहरे को थोड़ा मासूम बना के चुनाव के लिए निकला है, वोट मांग रहा है। अलग अलग गांव में, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषण लेके आया है। गांधीनगर का पैकेज अलग है, मंडी में जाके अलग है, खतरे में जाकर अलग है, हर जगह नए नए झूठे वादे। हमारा लाइन से इस तरफ का क्षेत्र जाता है, भाषणों में बोलता है, चौधरी साहब अपनी चौधर वापिस ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता यो,
अपने नेता का बार बार नाम लेता है। कई दिन पहले एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग ने पूछ लिया, अरे भाई ठीक है तेरे नेता का कई बार नाम ले दिया, पर तू बता जो ये नेता जिसने तू अपना नेता बताया है 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था, तन्ने को भी खोदी थी उसकी। तूने ही इसको हराने का काम किया था और तू कह रहा है मेरा नेता। उधर जाता है नूना कहता है कि मेरी दुकान दोबारा जमा दो, कहता है चौधरीओ अपनी चौधर ले आओ, चौधर की आड़ में अपनी दुकान जमाने की सोचे। उनको दिखाता है सीएम की कुर्सी, चौधर की बात करता है हमारे भोले वाले किसानों को, हमारे चाचा ताऊओं को, और अब उसकी आड़ में दुखे है एक बोर लाओ ना सारा थोड़ा सा। पिछली बार आप सबके आशीर्वाद से, इस सम्मानित मंच के आशीर्वाद से उसको पानीपत टोल तक छोड़ के आए थे, गलती होगी करनाल छोड़ कर आए। अब की बार करनाल दूर छोड़ खाऊंगे, फिर उल्टा नहीं आओगे, इस बात की करूंगा। भाषण वहां पे जाके देता है, चौधर का मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाता है, मंडी में आकर आपके भाई, आपके बेटे को, किसान के बेटे को बोलता है लाला जी देख लियो, विचार कर लियो, कदे गुंडा का राज आ जाए। क्यों भाई, एक नौजवान चलो किसान के घर में जन्म ले लिया, क्या किसान के घर में जन्म लेने को गुंडा बोलते हैं? आप सबके बच्चे 36 बिरादरी के लोग किसानी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, क्या किसान का बेटा गुंडा हो सकता है? 8.5 साल में तो भाई कहीं गुंडे वाली बात नहीं आई। एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से अपनी दुकानदारी व्यापार को जीरो से उठा के छोटी छोटी दुकान करके अपने व्यापार को शिखर तक पहुंचाया, क्या ऐसा व्यापारी गुंडा हो सकता है? यदि मैंने सब्जी की रेडी से लेके आज उत्तर भारत में मन्नत ग्रुप की जो फूड की चेन है, वेजिटेरियन फूड के अंदर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी चेन है, क्या व्यापारी कर सकता है या गुंडा कर सकता है? व्यापारी कर सकता है। इसलिए वो जो भाषण बदल बदल के बात कर रहा है, आपके बेटे को, आपके भाई को गुंडा बताता है और उनके बीच में जाके खुशर खुशर करता है, इन सारी बातों को और लोगों को समझाना है। जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति, हमारे चाचा ताऊ, हमारी बहनें नहीं आई हैं, इन सारी चीजों को आपने बताना है कि भाई हमने अपने भाई को, अपने बेटे को 8.5 साल व्रत रखा है। ये सारी चुनावी बातें हैं, इलेक्शन के हमारे भागा कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे दलित भाइयों में जाता है हर गांव में और कान में जाकर कहता भाई प्लाट प्लूट मिल गया कि नहीं मिल गया? बोला ना जी। बोला मन्ना बढ़ा दो, 1 तारीख के बाद प्लॉट है प्लॉट। सब गरीब भाइयों में प्लॉट बांट रहा है। हमारे बुजुर्गों को कोने में ले जाके अब चोर साहब वो सब पोता हो रहा है नौकरी के जोगा। बोला हाँ। बोला क्या कितना पड़ रहा है? बोला भाई 14वीं कर रखी। बोला इसकी नौकरी पक्की। कौन में ले जाके बताओ है? स्टेज में कौन बताता नौकरी पक्की? सबके कौन कान में बोले। उसको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर गरीब के बेटे को, गरीब की बेटी को जो अंतिम लाइन में बैठे हैं, जिसके घर में ना पैसे हैं ना नेता की सिफारिश है, आज उसके घर का दिया अपने आप जलता है। वो समय था जब नौकरी के लिए या तो अपने दादा को, पिताजी को बीएसटी में भेजना पड़ता था,
पैर दबाने पड़ते थे कई दिनों तक, या फिर नोटों की गठड़ी उठाकर वहां जाना पड़ता था, वो समय चला गया है। अब नौकरी उसको मिलती है जिसमें काबिलियत है, जिसमें हिम्मत है, जो होशियार है, जो स्वयं अपने अधिकार को पाता है, अपनी नौकरी को पाता है, नौकरी उसको मिलती है। इसलिए ये सारा फर्क समझना है। वो जो रंग बदल के आया है, चेहरा बदल के आया है, अंदर से वही है। 1 महीने की पिक्चर है, महीने के बाद एक की बार फोन नंबर भी बदलेगा। अरे भाई मन लगे नुनेरा होगा और नहीं होगा, तुमने खो बात करी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब वोटिंग मशीन का बटन दबाओगे, एक जगह पर फोटो मिलेगा आपके भाई का, आपके बेटे का, किसान के बेटे का, गरीब के बेटे का, और दूसरी जगह पर फोटो मिलेगा सारी आंगड़ी अपने आप काम करते, उसकी शक्ल देखते अपने आप डर जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई ये नौजवान, इसके अंदर भूख है काम करने की, इसको ललक है काम करने की। क्योंकि मैंने हर पीड़ा को, हर वो रास्ता स्वयं तय करके आया हूं। जो जो चीजें आज की जरूरत है, कितने नेता आए, कितने चले गए। आज हमारे गांधीनगर में खेड़ी रोड पे, गढ़ी जजाना रोड पे जब हमारे यहाँ कोई डेथ होती है तो संस्कार करने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ता है, या तो घूमर जाना पड़ता है या पर हमें वहां जाना पड़ता है। सब आए, सब ढक्के चले गए, काम चलाऊ बातें करी, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया। हमारे शहर में क्या सड़कों की हालत है, हमें शर्म आती है। जब जीटी रोड से अंदर जाते हैं, 2.5-3 किलोमीटर का टुकड़ा है हमारे गन्नौर शहर का, और इस गन्नौर हल्के का दिल है। क्या हालात है, क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि रहे, जो हमारा बारिश के पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालों का, सबने खाना पूर्ति की। आज तक कागजों पर कहीं भी कोई ड्रेन नहीं है, निकासी कहीं नहीं है सॉलिड, जिससे बारिश का पानी तुरंत उतर सके। हर बार वही पानी सड़कों पे आता है, और पानी की वजह से तारकोल की सड़कें सारी बह जाती है। परमानेंट समाधान किसी ने नहीं किया। कागजों पे गन्नौर का बाईपास है, लड़चौली से लेके हमारा इधर से राजलू गड्डी और अगवानपुर से घुमड़ होते हुए वहां पांची गुजरान जाके निकलता है। कागजों पे है सारी चीजें, लेकिन आज तक अमल में नहीं आए। सारा दिन शहर में जाम लगा रहता है, शहर में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं। आप बाजार में चले जाओ, ना शिव पार्क पे, ना देवीलाल चौक पे, ना आपका पुल के नीचे, ना रेलवे स्टेशन के पास, ना हमारे स्कूल के नीचे। कितनी तकलीफ होती है हमारी माता बहनों को, बुजुर्गों को। यदि हम परमानेंट नहीं तो मोबाइल बना सकते, प्रतिनिधि की जिम्मेवारी। हमारे रेलवे स्टेशन को देख लो, देश में कितने रेलवे स्टेशन आधुनिक बन गए, किसी ने नहीं सोचा। हमारा बस स्टैंड जर्जर हालत में पड़ा है, इतने मौके की जगह है, वहां पर उसको सुंदर बनाया जा सकता है, कमर्शियल मार्केट बनाई जा सकती है, शहर को फायदा हो सकता है। लेकिन आए, मोहर लगाई, कुछ नेताओं ने तो अपने बालका के रिश्ते करे, भाई छुट्टी। आपके भाई ने, आपके बेटे ने 5 साल के स्कीम के साथ नहीं आया हूं, कभी न सोचो कि भाई 5 साल की रूपरेखा बना के आया हूं। शुरुआत आपने करानी है, उसके 5 साल बाद मेरा काम बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। खूब देख लिए, खूब देख लिया और खूब समझ लिया। पिछले 5 साल में सारी चीजों की ट्रेनिंग ले ली, खूब डिग्री ले ली। झगड़ा सिर्फ इच्छा शक्ति का है। जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जब हम दिल्ली से आते हैं, सोनीपत में जब हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये हाईवे वहां गया, दूसरा हाईवे वहां गया, एक हाईवे उस तरफ गया, फिर एक हाईवे आया। कितनी कंपनियां, कितने रोजगार, कितने हाईवे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोनीपत का नक्शा बदला है, नक्शा बदला है केंद्र सरकार ने। ना बदला हो तो कोई 10 साल बाद सोनीपत में आए तो बता दो यार, जब पिछड़ में भी आ जा। ना ये पता चलता कि भाई ये रोड राजस्थान में जाता है, एक रोड गुड़गांव निकलता है, एक रोड जम्मू कटरा निकलता है, दूसरा रोड गोना होके जींद जाता है और आगे जाता है। 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे। मारुति की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला शहर, एजुकेशन हब सोनीपत में। लेकिन गन्नौर पीछे क्यों? इसका जवाब आप सबको ढूंढना है और ढूंढ के उस चेहरे को पकड़ना है जिसके अंदर भूख है, ललक है, जिसके अंदर आग है काम करने की, उसको ढूंढना है 1 तारीख को। ये सारी बातें हैं। थोड़ा लंबा बोल गया, आवाज आ रही थी छिड़ी छिड़ी, मैं भी मिट गया अपना। तो इसलिए लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई देखो, ये हमारी माता बहनें बैठी हैं। इस चुनाव में इस बात का फैसला करना है, क्या एमएलए बनने के लिए मंत्री, एमपी, एमएलए या किसी नेता के घर में जन्म लेना जरूरी है, या कोई गरीब किसान का बेटा भी किसी कोख से जन्म ले सकता है? इस बात का फैसला करना है। चुनाव में मेरा जो काम है, अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, ये जो कमल के फूल का निशान है, ये निशान आपको लाके दे दूंगा मैं। मुझे गर्व है इस कमल के फूल के निशान पर, जिसने देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, चाहे यूपी का नेतृत्व ऐसे हाथों में दिया जो आप जैसे परिवार से निकल के आए हुए व्यक्ति हैं। चाहे आदरणीय मोदी जी की बात हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात हो, चाहे ये लास्ट अंतिम पंक्ति में ये जो नौजवान है, हमारे सोनीपत जिले का जिलाध्यक्ष जसवीर दोदुआ, एससी समुदाय से आता है। रूलिंग पार्टी के अंदर सोनीपत जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है गरीब के बेटे को। ये जितनी मूर्तियां हैं, सबका एक ही पृष्ठभूमि है कि सब गरीब परिवार से निकल के आए। ये भारतीय जनता पार्टी मुझे यदि सम्मान दिया है, यदि मैं मंच से मेरे अंदर आत्मविश्वास दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और उसका एकमात्र कारण यही है कि मैं आप जैसे आम परिवार से, गरीब परिवार से निकल के आया। यदि मैं यहाँ पर इन माता बहने बुजुर्ग बैठे हैं, किसी से पूछूं हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पिताजी का नाम बताओ, तो शायद एक भी हाथ नहीं उठेगा। और दूसरा नेता, उसके लड़के का, उसके पिताजी का, फिर उसके पिताजी का, और आगे उसके पिताजी का, सबको उंगलियों पर रटा हुआ है। और मोदी जी के पिताजी का किसी को याद नहीं, योगी जी के पिताजी का किसी को याद, क्योंकि वो गरीब पिता के बेटे, वो गरीब घर से आए। याद किसका रहता है? याद रहता है राहुल गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी, उसकी मां का नाम इंदिरा गांधी, उसके पिताजी का नाम जवाहरलाल। जो परिवारवाद की राजनीति है, जिसका जिक्र मैंने गन्नौर के नेता का किया,
दूसरे नेता का किया, नाम उनका रहता है जो नेता के घर में जन्म लेते हैं, जो परिवारवाद की राजनीति है। ये जो चेहरे हैं, जो हमारे देश का मिजाज है, जो हरियाणा का मिजाज है, 1.5 एकड़ का छोटे से किसान का बेटा यमुनानगर में छोटे से गांव से निकल के आया, बैकवर्ड समाज का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री। उसके गांव में जाके देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहां से निकल के आया, छोटे से पदाधिकारी से लेके जिलाध्यक्ष, फिर उससे ऊपर आज यहां पर शिखर पे बैठा है अपनी मेहनत के बदौलत और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच की बदौलत। इसलिए आपको फैसला लेना है। ये वो पार्टी है जो आप जैसे परिवार के अनुभवी, जिन्होंने हर चीज का अनुभव किया हो, जिसको हर पीड़ा का पता हो, ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और परिवारवाद की राजनीति, बांग्लादेश में देखो क्या हालत है, और हमारे देश में आदरणीय मोदी जी की वजह से हम चारों ओर से सुरक्षित हैं। आज यदि हमारा बच्चा कोई, हमारा भाई, हमारी कोई बहन विदेश में है तो एक बार पता कर लेना। आज इंडियन होने पे गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। पहले जहाज से उतर गए ऐसी फील आती थी जैसे लेबर क्लास की फील आती थी, और हमारी गिनती होती थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वाली कैटेगरी में आते थे। लेकिन आज दुनिया में हमारी श्रेणी अलग है, वो सिर्फ मोदी जी की बदौलत है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति पार्टी को लेकर, बहुत सारे व्यक्ति कई चीजों को लेकर बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि देश के लिए, देश के तिरंगे के लिए किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया है अपने धर्म के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे आदरणीय मोदी जी हैं और हमारा नेतृत्व। तो आपको फैसला लेना है 1 तारीख को। ऐसी मैं आपसे उम्मीद आशा करता हूं कि आप उस नेता को, जिसने केवल भेदभाव किया है, जिसने केवल दुर्भात करी है, जिसने गरीबों की अनदेखी करी है, जो केवल बड़े लोगों के लिए बना है, उस व्यक्ति को अब की बार परमानेंट करनाल भेजेंगे और बेटे को मौका देंगे। जिस बेटे ने हर चीज को अपने आप में महसूस किया है, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। अंतिम में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई, जन्म का अधिकार, जन्म लेने का अधिकार सबको है। मेरे को गर्भ में मत मारना, मुझे जन्म लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आगे हो जाओ सर, आगे सुन ले तो छोरा सा सारे के विकास के पथ पे